Praise the Lord. We welcome you all in the sweet and loving name of Jesus Christ for this worship service to worship the Lord in this morning in the truth and spirit. आज सुबह का समय प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको हम आमंत्रण देते हैं। प्रभु को आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। For our meditation this morning, let us open our Bibles to book of John the Gospel, chapter 11, verses 38 and 39. यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 38वां और 39वां वचन को हम निकाल कर पढ़ेंगे। John the Gospel, यूहन्ना का सुसमाचार chapter 11, 11 अध्याय verses 38 and 39. 38वां वचन 39वां वचन। Everybody open your Bibles and read once. Everybody loudly open your Bibles and read in your own languages. यीशु मन में फिर उदास हुए थे, वो कब्र पर आया और वो गुफा थी कि वो पत्थर पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ, उसे और दुर्गंध आती क्योंकि उसके मेरे 4 दिन हो चुके हैं जो यीशु के प्रभु से दुर्गंध है। Now read in. यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। அப்பொழுது இயேசு மறுபடியும் தமக்குள்ளே கலங்கி கல்லறையிடத்துக்கு வந்தார். அது ஒரு குகையா இருந்தது. அதன் மேல் ஒரு கல் வைக்கப்பட்டிருந்தது. இயேசு கல்லை எடுத்து போடுங்கள் என்றார். மரித்தவனுடைய சகோதரியாகிய மார்த்தாள் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, இப்பொழுது நாருமே 4 நாளாயிற்றே என்றாள். యేసు మరలా తనలో మూలుగుచు సమాధి యొద్దకు వచ్చెను. అది ఒక గుహ, దాని మీద ఒక రాయి పెట్టి ఉండెను. యేసు రాయి తీసివేయడని చెప్పగా చనిపోయిన వాని సహోదరి అయిన మార్త, ప్రభువా, అతడు చనిపోయి 4 దినములైనది గనుక ఇప్పటికి వాసన కొట్టునని ఆయనతో చెప్పెను. യേശു പിന്നെയും ഉള്ളം നൊന്ത് കല്ലറയ്ക്കിലെത്തി. അതൊരു ഗുഹയായിരുന്നു. ഒരു കല്ലും അതിന്മേൽ വച്ചിരുന്നു. കല്ല് നീക്കുവിനെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. മരിച്ചവൻ്റെ സഹോദരിയായ മാർത്ത, കർത്താവേ, നാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങി 4 ദിവസമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So this is very well-known passage to every one of us. हम सभी के लिए परिचित एक वाक्य यहाँ पर है। Almost all the Christians knows this passage very well. और लगभग सारे मसीही लोग इस भाग को अच्छी तरह से जानते हैं। When Jesus Christ was upon this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, once he went to a cemetery, graveyard. और एक बार वो कब्र में गए। That was the grave of Lazarus. वो लाजर का कब्र था। So this morning, God wants to speak to us in a different angle. आज सुबह को परमेश्वर हमको भिन्न तरीके से परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए चाहता है। Many times you might have heard this message in different angles. आपने कई बार इस संदेश को अलग अलग तरीके से सुना होगा। But this morning God wants to speak to you in another aspect. लेकिन परमेश्वर आज कुछ अलग रीति से आपसे इस वचन के द्वारा बात करने के लिए चाहता है। So when Jesus was upon this earth, he visited so many places. जब यीशु इस पृथ्वी में थे तो कई जगहों में जाकर उसने मुलाकात की। He went to so many villages. उसने बहुत सारे गांवों में गए। So many cities. कई नगरों में गए। He healed so many sick people. कई बीमारों को यीशु ने चंगाई किया। He delivered so many demonic possessed people. दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को यीशु ने चंगाई किया। He touched so many lepers and healed them. कई कोढ़ियों को यीशु ने छूकर उनको चंगाई दिया। And he made to revive the dead people. और जो मुर्दे लोगों को उसने जिलाया। And so many wonder works he has done while he was on this earth. जब यीशु इस पृथ्वी में थे उसने बहुत चिन्ह और चमत्कार के साथ अद्भुत कामों को किया। During his ministration he went to a graveyard once. और एक बार अपनी सेवकाई के दरमियान वो एक कब्र के पास गया। Because Lazarus was died, क्योंकि लाजर मृत्यु पाया, they kept him in a tomb. और इसलिए उसको कब्र में लाजर रखा गया। That's why Jesus wanted to see
he visited that graveyard. और यीशु देखना चाहता था, इसलिए यीशु ने कब्र की मुलाकात ली। Of course, you might be thinking why Jesus was going to graveyard. आप सोच रहे होंगे यीशु ये कब्र की ओर क्यों गया? Generally, when a man dies, आमतौर में जब एक व्यक्ति का मृत्यु होता है, if they were unable to attend their funeral service, यदि उस मृतक व्यक्ति का उस जो सेवकाई होता है वहां जाने के लिए उनसे न हो सका तो, अंतिम संस्कार में जाने के लिए उनसे संभव न हो सका तो, then they will go to their houses. और तभी उसके घर पे जाते थे। They never go to graveyard to see them. और कब्र में जाकर उनकी मुलाकात नहीं लेते थे। They only goes to their houses and visit them and comfort them. और वे उनके घर पे जाकर, उनके पास जाकर उनको शांति नहीं तो आश्वासन देते थे। But here a wonderful thing we see, Jesus straight away went to a graveyard. और यहाँ पर एक अद्भुत बात को देखते हैं, यीशु सीधा सीधा उस कब्र की ओर चला गया। Why did he go to graveyard? यीशु क्यों उस कब्र की ओर चला गया? To rise up Lazarus from the dead. लाजर को मुर्दे में से जीवित करने के लिए यीशु कब्र के पास गया। Beloved people of God, this morning your life also might be like a graveyard. और प्रिय परमेश्वर के बच्चे, शायद आपका जीवन भी उस कब्र के समान है। तो This one thing you must understand, Jesus is coming to seek after you. और इस बात को ध्यान देकर यीशु आपको ढूंढकर आपके पास आता है। Wherever you may be, Jesus will come and visit you there. आप चाहे जहां पर भी हो, यीशु आपके पास आकर आपकी मुलाकात लेने के लिए आएगा। Jesus Christ came to this world to seek that which was lost. और यीशु इस पृथ्वी में जो खोए हुए को ढूंढने के लिए यीशु आया। This morning also you might have seated here as a lost person. शायद आज सुबह का समय आप एक खोए व्यक्ति के समान यहाँ पर बैठे होंगे। You must understand Jesus is coming here to seek after you only. और इस बात को ध्यान रखिए, यीशु आपके पास आकर आपको ढूंढने के लिए आया है। So this Lazarus, Mary and Martha, they were living in a village called Bethany. That was a lovely family, small family. और मार्था, मरियम, लाजर एक गांव बेथनी में रहते थे, एक जगह में रहते थे। They are very loving family. बहुत ही एक प्रेमी परिवार था। Often Jesus used to visit their house. और कई बार यीशु उनके घर पे जाके उनका मुलाकात So लेते they थे। are also loving Jesus very much. और वे लोग भी यीशु को बहुत प्यार करते थे। All of a sudden, once Lazarus fell sick. अचानक से एक बार लाजर बीमार हो गए। So they conveyed message to Jesus to come and pray for him. और संदेश भेजा यीशु के पास, आकर लाजर के लिए प्रार्थना आप करिए। One day over, एक दिन पूरा 2 हुआ, days over, 2 दिन पूरा 3 हुआ, days over, 3 दिन पूरा हुआ, 4 days over. 4 दिन हो गया। But Jesus didn't come. लेकिन यीशु When नहीं आया। Lazarus was died, और जब लाजरस मर they गए, waited, और उन्होंने इंतजार किया, they wept, और उन्होंने रोए, they grieved in their hearts, और अपने हृदय में उन्होंने बहुत ही दुखित हुए, and finally they buried him. और आखिरी में उसको कब्र में रख दिया। Now 4 days over passed, अब 4 दिन बीत चुका है। and after the 4th day, Jesus was coming over there. अभी 4 दिन पूरा होने के बाद यीशु वहां आता है। Beloved people of God, प्रिय परमेश्वर के लोग, sometimes you may be praying, taking fasting and crying and weeping in the presence of God, but yet you did not receive any answer from God. कभी कभी आप परमेश्वर के सन्मुख में आंसू बहाते होगे, रोते होगे, चिल्लाते होगे, लेकिन परमेश्वर प्रभु की ओर से आपको उत्तर नहीं तो जवाब नहीं मिला But है। you must understand one thing, why Jesus is delaying. आपको इस बात समझना होगा, यीशु विलंब या देरी क्यों करता है। He wanted to do a great miracle work in your life. That is why he was waiting and delaying to answer you. परमेश्वर एक अद्भुत काम, एक महान काम करने के लिए चाहता है, इसलिए आपके जीवन में प्रार्थना की उत्तर के लिए देरी होता But है। so many times we used to hasten, hastily we wanted to do every work. और कई बार हम फुर्ती से, जल्दी से बहुत कुछ करने के लिए चाहते But हैं। Jesus says, wait and delay. लॉर्ड यीशु कहता है कि इंतजार करो, थोड़ी बाट जो। When we wait and
seek for the Lord, जब हम परमेश्वर के सन्मुख में इंतजार करेंगे, परमेश्वर के लिए बाट जोएंगे तो He will work for us more than we ask or think. और वो हमारे लिए जितना हम मांगते और चाहते हैं उससे अधिक हमारे लिए करेगा। If Jesus would have come that day when Lazarus was sick, only he could able to heal him. जब लाजर बीमार थे, यदि यीशु वहां पर आता तो यीशु केवल लाजर को चंगाई दे पाता है। But when Jesus delayed, लेकिन यीशु आने में देरी होने so के कारण Jesus rose up Lazarus from death, that was become a great wonder all over Israel. और यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया, वो बड़ी चमत्कार पूरा इजराइल के देश में To हुआ। morning also Jesus is delaying so many things for you. आज सुबह का समय भी यीशु आपके लिए बहुत कुछ कामों को देरी करता So है many prayers he delayed for you. और बहुत सारी प्रार्थना का उत्तर के लिए देरी हो रहा है। You took fasting and you are weeping in the presence of God, आपने उपवास लिया, परमेश्वर के सन्मुख में आप आंसू बहा रहे हो, but still you did not receive any answer from God. और अभी तक आपको परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है। Beloved child of God, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, don't be discouraged. आप बिल्कुल दुखित ना होना। God is with you. परमेश्वर He आपके wanted साथ, to answer you in a different way. वो आपको एक अलग तरीके से आपकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए Jesus चाहता है। wants to bless you in a different way. आपको भिन्न तरीके से वो आशीष देने के लिए That's चाहता why है he is delaying for you. और इसलिए वो देरी कर रहा है। But our human mind cannot comprehend the mind of God. हमारे मानसिक बुद्धि परमेश्वर की उस बुद्धि को समझ नहीं पाएगा। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। So, Lord Jesus came to the graveyard, देखिए यीशु उस कब्र के पास आ रहा है, and there are so many people who are standing there, वहां बहुत सारे लोग कब्र के पास खड़े हैं and Jesus asked them to remove the stone. और यीशु ने कहा कि उस पत्थर को हटा दो। So, beyond the stone, Lazarus was there, और उस पत्थर के उस पार लाजर का शरीर था and before the stone, Jesus was standing. और पत्थर के सामने यीशु खड़ा था। So, before Jesus and Lazarus, in between them, a great stone was standing. यीशु और लाजर के बीच में एक बड़ा सा पत्थर वहां है। Oh, so they has to remove that stone. Only then Lazarus can come out. और पहले उस पत्थर को निकालना पड़ता, उसके बाद ही लाजर निकल पाएगा। What God wants to speak to us this morning, परमेश्वर आज सुबह हमसे क्या बात करने के लिए चाहता Jesus है? is asking us to remove that stone first of all. सबसे पहले यीशु हमसे कहता है कि उस पत्थर को निकाल दो। So many times we are expecting so many miraculous things and wondrous things from God, कई बार हम बहुत ही चिन्ह और चमत्कार को परमेश्वर की ओर से प्रतीक्षा but करते Jesus हैं, would not able to do for us. लेकिन यीशु हमारे लिए कर नहीं पाएगा। What is the reason? कारण क्या है? That is not the mistake of Jesus, ये यीशु की गलती नहीं but है। Jesus asking us to remove that stone. सबसे पहले यीशु हमसे कहता है इसको, उस पत्थर को निकाल दो। It was an hindrance to Jesus to work for us. और यीशु को वहां काम करने के लिए वो एक रुकावट के समान था। Jesus to work for us, that was an hindrance. और यीशु हमारे लिए काम करना है तो ये एक रुकावट था हमारे लिए। If he wants Jesus to work for you, यदि यीशु आपके लिए काम करना है if तो, you want Jesus to bless you, यीशु आपको आशीष देना है तो, if you want Jesus to deliver you, यीशु आपको छुटकारा देना if है you तो, want Jesus to heal you, यीशु आपको चंगाई देना है this तो, morning Jesus is asking you to remove that stone. आज सुबह को यीशु आपसे कहता है कि उस पत्थर को हटा दो। That stone was standing as an hindrance in between Jesus and you. और उस पत्थर यीशु और आपके बीच में एक बाधा नहीं तो रुकावट के समान है। Now we come to Lazarus. हम लाजर के पास So आएंगे। what is the meaning, the spiritual meaning for Lazarus? लाजरस का आत्मिक अर्थ क्या है? When we look at the Bible dictionary, जब हम बाइबल की शब्दकोश को देखते हैं, so many meanings were given to Lazarus. The Lazar के- name called Lazarus. और लाजर का कई अर्थ को हम देख पाएंगे। Lazar means the assistance of God. लाजर मतलब परमेश्वर की सहायता। Lazar means the help from God, लाजर मतलब परमेश्वर की ओर से मदद। and so on and so forth. So many meanings were given. और बहुत सारे ऐसे अर्थ दिए गए हैं। For our meditation, let us take Lazarus means the heavenly Father who help us. और लाजर का मतलब जो स्वर्गीय पिता जो हमारी सहायता नहीं तो मदद करता है। He always wanted to help his people. हमेशा परमेश्वर अपनी लोगों की सहायता करने के लिए चाहता है। Psalm number 46 verse 1 says, और भजन संहिता 46 का 1 लिखा है, the Lord is our strength and refuge, and is very present help in our troubles. यहोवा हमारा बल
और हमारा शरण स्थान है और संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला हमारा He सहायक है। wanted to help his people always. वो अपनी प्रजा को हमेशा मदद करने के लिए चाहता But है, we are keeping so many hindrances between us and God. लेकिन हम परमेश्वर को हमारे बीच में बहुत सारी रुकावट को रख देते I हैं। think Isaiah 59 verse 2 says, यशायाह 59 का दूसरा वचन में लिखा है, your iniquities and your sins are standing as a great wall between you and your God. और तुम्हारे अधर्म के काम ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। Your iniquities and your sins. तुम्हारे अधर्म के काम और तुम्हारे पापों ने तुमको परमेश्वर से अलग किया है। And these both are standing as a wall. और ये अधर्म और पाप एक दीवार के समान खड़ा है। So when we break that wall, only then we can approach God. और इस दीवार को जब हम तोड़ देंगे तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। Jesus asking us to break that wall. यीशु हमसे कहता है कि उस दीवार को तुम तोड़ दो। Now, because of our sins and our iniquities, that wall was made up. हमारे अधर्म और हमारे पापों के कारण उस दीवार बना है। And Ephesians chapter 2 verse 13, I think so, the word of God says, these sins are separating us from our God. और इफिसी दूसरा अध्याय में लिखा है कि इस पाप हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। They are separating us from our heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता से वो हमें हमारे पाप और अधर्म को अलग कर देता है। So this morning Jesus is asking us to remove that stone first of all. सबसे पहले आज सुबह का समय परमेश्वर कहता है कि उस पत्थर को हमारे सामने से निकाल Then दे। we can get help. तभी हमें सहायता मिल सके Only then our heavenly Father would able to help us. और तभी हमारे स्वर्गीय पिता हमारी मदद कर पाएगा। Otherwise he cannot help. नहीं तो वो हमारी सहायता नहीं कर For पाएगा। Jesus to work for us, यीशु यदि हमारे जीवन में काम करना he है needs our help also. और हमारी सहायता भी वो चाहता We है। both must work. Only then God will हम do दोनों- a miracle. हम दोनों काम करने के समय परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। With a single hand we cannot clap, you know. और एक ही हाथ के द्वारा हम ताली नहीं मार To सकते हैं clap we need two hands. और ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत है। So also, और उसी तरह so God to work for us, यदि परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा when है, He is asking us to remove some things, we have to remove. जब वो हमसे कहता है कि हमारे जीवन से कुछ विषय को निकाल देना है तो हमें Only निकालना then we can चाहिए। enjoy the wonder working of God. और तभी परमेश्वर के अद्भुत काम को हम अनुभव कर So पाएंगे। this stone as an hindrance for us, it is standing beyond. और ये पत्थर हमारी रुकावट के समान हमारे सामने खड़ा है। So beyond that stone, Lazarus was there. और उस पत्थर के उस पार लाजर था। Lazarus means the God the Father is our help. और लाजर का मतलब पिता हमारी सहायक है। When we look at the word of God, हम परमेश्वर के वचन को देखने के for समय our heavenly Father, there are so many character names were given. हमारे स्वर्गीय पिता के लिए भिन्न भिन्न नाम दिया गया है। Not only the Father who help us. जो पिता हमारी सहायता करता है उतना When ही we नहीं। look at 1 Peter chapter 1 verse 17, पहला पत्रस पहला अध्याय 17 वचन निकाल कर पढ़ेंगे। we read about our God's nature there. हम हमारे He is an impartial God. हम हमारे परमेश्वर के स्वभाव के बारे में देखते हैं कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता There है। is no partiality in our God. हमारे परमेश्वर के अंदर कोई पक्षपात नहीं। He never looks at our language, creed, or any caste or anything. वो भाषा, जाति इत्यादि वस्तुओं को नहीं देखता है। He is purely impartial Father. वो हमारा पिता पूरी तरह से पक्षपात नहीं करता है। And Matthew chapter 6 verse 4, when we read, मत्ती 6 का 4 पढ़ते समय मालूम पड़ेगा। there we see our Father who is in secret. और वहां हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो गुप्त में रहता है He wants us to do everything in secret. और वो चाहता है कि सब कुछ हम गुप्त में करें। We should not reveal and we should not disclose anything and do anything openly. हम सारे विषय से खुल्लम खुल्ला में न करते हुए कुछ विषय को गुप्त में करना है। Because our God is in secret, क्योंकि हमारा परमेश्वर गुप्त में रहता He है will answer us in secret. और हमें वो उत्तर भी गुप्त रीति से देगा। And Hebrews 12:9 says, इब्रानी 12 का 9 में लिखा है He is the Father of lights. और वो ज्योतियों का Father of पिता। Spirit, Father of Spirit.
और वो उसके बारे में लिखा है कि वो आत्माओं का पिता है। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। And James 1:17 says, याकूब 1:17 में लिखा है He is the father of lights. वो ज्योतियों का पिता है। And John 14:23 says, यूहन्ना 14:23 में लिखा है He is a loving father. वो प्रेमी पिता है। And John 17:11 says, यूहन्ना 17:11 में लिखा है He is a holy father. वो पवित्र परमेश्वर है। John 17:25 says, यूहन्ना 17:25 में लिखा है He is a righteous father. वो धर्मी पिता है। And Luke 6:36 says, लूका 6:36 में लिखा है He is a merciful father. वो दयालु पिता है। And Ephesians 4:32 says, इफिसियों 4:32 में लिखा है He is a forgiving father. वो क्षमा करने वाला पिता है। And 1 Peter 1:17, once again we read, पहला He पत्रस- that righteous judge. Our father is righteous judge. और वो हमारा पिता वो अच्छा सच्चा न्यायी है। Like these 10 attributes we see in the word of God. और ये 10 विशेष गुण परमेश्वर के बारे में लिखा है। So all these attributes, all these characters, all these through all these characters, we to experience the blessings of God, Yep. we need to remove the stone which was standing between us and God. ये सारे अच्छे गुणों को हमारे जीवन में अनुभव करना तो हमारे सामने उस पत्थर को हमें निकालना चाहिए। All the blessings through this heavenly Father to enjoy, to experience in our lives, ये सारे हमारे स्वर्गीय पिता से सारे आशीषों को अनुभव करना है तो and we must remove that stone. हम उस पत्थर को निकालना चाहिए। Only then God can work for us freely. और तभी परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम कर पाएगा। He was asking the people, those who are standing there, to remove that stone. वहां जो लोग खड़े थे उनसे कहा कि उस पत्थर को तुम हटा दो। Then what happened there? और उसके बाद क्या हुआ? Martha was telling, मार्ता बोल रही थी, Father, Master, already 4 days over. मार्ता कहती है 4 दिन है पिता हो चुका है It might be stinking. और अभी दुर्गंध आ रहा होगा। That there are two reason. उसका 2 कारण है That is true reason. और True. ये एक सच्चा कारण यही है Because 4 days over. क्योंकि 4 दिन बीत चुका है। So why Jesus Christ came over there after the 4 days? क्यों यीशु मसीह वहां 4 दिन के बाद आए? He could have come earlier, before, on 3rd day or 2nd day and the first day after. यीशु तीसरा दिन भी आ सकता था, दूसरा दिन या पहले दिन आ सकता था। But why did he come on after the 4th day? क्यों यीशु 4 दिन बीतने के बाद आया? So the Bible history says, बाइबल की इतिहास में लिखा है so Jews had a tradition. और यहूदी लोगों को एक उनके बारे में उसके बारे में एक पहले से प्रतीक्षा थी Till for the 4th day, the spirit will roam around the dead body. 4 दिन तक आत्मा उस मृतक शरीर के आजू बाजू में घूमते रहता The है। one who died, his spirit will roam around the body for 4 days. जो व्यक्ति मर गया उसकी आत्मा उसके मृतक शरीर के आजू बाजू में 4 दिन तक घूमते रहता है। यहूदी लोगों की यही मान्यता थी। And if he would have come on the 4th day or 3rd day, यदि चौथे दिन नहीं तो तीसरे दिन आता तो what would these Jews would have told? यहूदी लोग तब क्या बोलते? Jesus caught hold the spirit and put in this body and he was rose up. और यीशु ने इन सारे आत्माओं को पकड़कर उसकी शरीर में डालने के बाद The spirit of this dead body he took hold and put it in the body and it body was rose up. इस मृतक शरीर की आत्मा को यीशु ने पकड़कर उसके शरीर में डाल के फिर से वो व्यक्ति जिंदा हो So गया। that is the tradition of the Jews. और यही यहूदी लोग की परंपरा थी। That is why और इसलिए after 4 days over, Jesus came there. 4 दिन बीतने के बाद यीशु इसके लिए आए। So now Martha says, अभी मार्ता कहती है, Master, it would sting because 4 days over. अभी ये स्वामी ये तो दुर्गंध दे रहा हूं क्योंकि 4 दिन बीत चुका है। That is the true reason. और यही सच्चा Oh कारण dear है। people of God, हे प्रिय परमेश्वर this के लोग, morning your life also is stinking state.
और आपका जीवन भी शायद दुर्गंध अवस्था में है, Because of various problems you are going through, your life is stinking. आप बहुत सारी समस्या से गुजरने के कारण आपका जीवन में दुर्गंध हो सकता But है। this morning Jesus wants to rise up. लेकिन आज यीशु मसीह आपको जिलाना चाहता What है। did Jesus say to Martha? यीशु ने मार्था से क्या कहा? If you would believe, you shall see the glory of God. यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को Oh, the देख पाओगे। same thing Jesus is asking from us. वही विषय यीशु हमसे कहता है, If you would believe, you shall see the glory of God. यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को Our देख Jesus is पाओगे। living even today. हमारा यीशु आज भी जीवित है। We are not worshipping a dead God. हम मुर्दा परमेश्वर की आराधना We नहीं are करते हैं। worshipping a supernatural God. हम बहुत ही सामर्थी अलौकिक He परमेश्वर is की a आराधना- living God. वो जीवित परमेश्वर He is है, an unchanging God. वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। Yesterday, today, and forever, He is the same. कल, आज और आने वाला कल वो एक ही समान है। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोग, believe this morning Jesus is moving in our midst. हम विश्वास करेंगे कि यीशु हमारे बीच में घूम रहा है। He wants to change the stinking state of your life. आपके जीवन की दुर्गंध वाली अवस्था को वो मिटाना चाहता है। Just He asking us to believe. केवल हमसे कहता है कि तुम विश्वास This करो। morning Jesus wants to do a great wonder in your life. आज सुबह को यीशु आपके जीवन में बड़ी अद्भुत काम करना चाहता Your है। business, your office, your work, your studies, your family, your faith life, everything is like in a stinking state. आपका बिजनेस, आपका काम, आपका धंधा, आपकी पढ़ाई के क्षेत्र सब कुछ दुर्गंध वाली अवस्था में But होगा। Jesus wants to change that. लेकिन यीशु उसको बदलना चाहता One है। thing He is asking from us, एक विषय हमसे कहता है, just believe Jesus. केवल यीशु पर विश्वास If को you लाओ। would believe, you shall see the glory of God. यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। Only then God can use that word. और तभी परमेश्वर उस शब्द को इस्तेमाल करता है। Lazarus, come out. हे लाजर तू बाहर निकला। Only then God can use that word. तभी ला परमेश्वर यीशु उस शब्द बोल सकता So है। this morning Jesus is asking every one of us, और आज सुबह को यीशु हम सबसे कहता है, remove that stone. उस पत्थर को तुम निकालो। Now coming back to our passage, हमारे इस विषय में आने के when we समय go through the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, what does this stone signifies? ये पत्थर का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? There are so many meanings were given to this stone. और इस पत्थर की कई मतलब और अर्थ है। So when we applicate all these things into spiritual application, वो सारे विषयों को यदि आत्मिक अर्थ में हम देखें तो when we get rid out of all these things, only then we can get help from our heavenly Father. इन सारे वस्तुओं को वजह पाने के समय ही हमको उस आशीष मिल सकता है। We must get rid out of all these things. और सारे वस्तुओं से हम छूटना चाहिए, बचना चाहिए। We must get rid out of all these stony experiences. ये पत्थर वाली अनुभव, पथरीली अनुभव से हम छुटकारा पाना Only चाहिए। then God can work for us. तभी परमेश्वर हमारे लिए काम कर सकता है। When we coming back to our passage, हमारे इस पद में आएंगे, let us read Exodus chapter 15 verse 5. निर्गमन 15 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। Exodus chapter 15 verse 5. निर्गमन 15 अध्याय 5वां There we वचन। see Egyptians like a stone, they drowned under the waters. और वहां पर मिस्री लोगों के बारे में देखते हैं कि वो Egyptians, they are like a stone. मिस्र के लोग वहां पत्थर के समान हैं। They were all drowned, sunk in a deep sea. और वे सभी लोग उस पानी में डूब गए। Read that verse 15:5. गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया और वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। ஆழி அவர்களை மூடிக்கொண்டது, கல்லை போல ஆழங்களில் அமிழ்ந்து போனார்கள். అగాధ జలములు వారిని కప్పెను, వారు రాతి వలె అడుగంటి పోయిరి. ആഴി അവരെ മൂടി അവർ കല്ലുപോലെ ആഴത്തിൽ താണു. These Egyptians, they are pursuing after the Israelites. और मिस्र के लोग अभी इजराइलियों का पीछा कर रहे हैं। With a great mighty hand of God, they got deliverance from the land of Egypt. परमेश्वर के महान हाथ के कारण परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से छुटकारा दिया। And they came near unto Red Sea.
और लगभग लाल समुद्र के पास वो पहुंच गए। So all these people are following after these Israelites. ये सारे लोग इजराइल लोगों के पीछे मिस्र के लोग पीछा कर रहे हैं। When Israelites look at front, there was a great sea. और इजरायलियों आगे देखने के समय बड़ा एक समुद्र है। When they look at backside, there was a great army of Pharaoh. और पीछे मुड़कर देखने के समय फिरौन की बड़ी सेना है। They are almost frightened by looking at this situation. और इस परिस्थिति को देखने के समय वो बहुत ही भयभीत हो गए। Then what was the promise of God to the people of God? और परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर ने क्या वायदा किया? Exodus chapter 14 verse 14 when we read, निर्गमन 14 अध्याय 14 वचन पढ़ने के समय be still and know that I am the Lord. और कहता है कि Be still तुम चुपचाप रहो and know that I am the Lord. और तुम जान लो कि मैं And परमेश्वर हूँ। I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए लड़े And be silent. और तुम चुपचाप रहो। That's what the promise of God. परमेश्वर का वायदा ये Dear है। child of God, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, so many problems are standing as a Red Sea in front of you. आपके सामने कई सारी समस्या लाल समुद्र के समान खड़ा है। And you would not able to go forward. आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो Because there was a great Red Sea hindering you. क्योंकि एक बड़ी लाल समुद्र आपके लिए बाधा के समान And है। back there was a great army of Pharaoh. और पीछे फिरौन की बड़ी सेना है। Oh, this morning God is speaking to you. आज सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा Dear है। child of God, प्रिय परमेश्वर के don't बच्चे, be frightened. तुम भयभीत मत होना। I am with you. मैं तुम्हारे I साथ will हूँ। fight for you. मैं तुम्हारे लिए I will लड़ूंगा। give you great victory. मैं तुम्हें महान विजय दूंगा। Just you believe God. केवल परमेश्वर पर विश्वास करो। So Israelites, when we look at the life of Israelites, जब हम इजरायलियों के जीवन के बारे में देखते they हैं, always have the spirit of frightening. वो हमेशा उनके जीवन में डर की आत्मा समा हुआ For था। small things they used to fear. छोटे छोटे विषय के कारण वो भयभीत हो जाते So हैं। almost 2 times God promised them, लगभग 2 बार परमेश्वर ने उनसे वायदा किया, I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। Deuteronomy chapter 31. और व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय, There God promised when Moses got old. जब मूसा बूढ़ा हो गया, परमेश्वर ने वायदा ये दिया। 31:8, Deuteronomy 31:8, there God was promising them because Moses became old and people are frightened. After that, who will going to lead us? और मूसा बूढ़ा हो गया, इसके बाद हमें कौन चलाएगा, इस बात के कारण भयभीत बैठे थे। That time God spoke to them, gave them a promise. उस समय परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया, परमेश्वर ने एक वायदा दिया। Deuteronomy 31:8, God says, I will never leave you nor forsake you. और वहां लिखा है कि मैं तुम्हें कभी धोखा न दूंगा, तुम्हें ना छोड़ दूंगा। So the Lord is giving this promise to the whole congregation of Israelites. और इजराइल के सारे लोगों को परमेश्वर वायदा देता है। And once again, और एक बार when Joshua chapter 1 verse 5 when we come, और यहोशू पहला अध्याय 5वां वचन आते समय there also Joshua got frightened. वहां यहोशू भयभीत हो गया। Now Moses was died. मूसा अभी मर चुका है। So the whole responsibility came upon the shoulders of Joshua. और इसलिए सारी जिम्मेदारी यहोशू के कंधों पर आ गया। He was frightened वो भयभीत हो गया because these people resisted Moses. क्योंकि ये लोग मूसा का सामना कर रहे थे। In so many times they tried to kill Moses. कई बार उन्होंने मूसा को मार डालने के लिए कोशिश किया। And they did so many evil works against Moses. मूसा के सामने उन्होंने कई बुराइयों को So किया। by thinking all these things, Joshua was frightened. और ये सारे विषय को सोचते हुए यहोशू डर गया। At that time, उस समय God spoke to Joshua. यहोशू से परमेश्वर ने बात की, I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। As I was with Moses, I will be with you. जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे तेरे संग रहूं। Nobody can stand before you all the days of your life. तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर नहीं Oh, सकेगा। the same promise Jesus is giving to us. आज वही वायदा यीशु हमको देता है। I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। When we come to New Testament, हम नया नियम में आते once समय again Jesus is giving this promise to every one of us. और यीशु एक बार ये वायदा सभी को देता है। Hebrews chapter 13 verse
I think 5, na? Hebrews chapter 13 verse 5. There also Jesus was, the word of God says, be content whatever you have without covetousness. I will never leave you nor forsake you. इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास उसी और संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। I will never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। The same promise Jesus is giving this morning to us. आज वही वायदा परमेश्वर यीशु हमको देता है। The beloved people of God, प्रिय परमेश्वर के लोग, don't be frightened. आप भयभीत मत होना। Looking at that great army, उस बड़ी सेना को देखकर, evil forces are pursuing after you. और दुष्ट लोग आपका पीछा कर रहे होंगे, The powers of witchcraft are pursuing after you. और वहां पर जादू टोना की सामर्थ आपके विरुद्ध काम कर रहा होगा। But Jesus is standing over there. लेकिन यीशु वहां खड़ा है, And he sent a great darkness in the midst of Egyptians. और मिस्री लोगों के बीच में बड़ी अंधकार को परमेश्वर ने भेजा, But the great light following before the children of Israelites. लेकिन इस्राएली लोगों के सामने बड़ी सी ज्योति उनके आगे आगे चल रहा Then है। what happened there? और क्या हो रहा है? See, God was telling, don't be frightened. और परमेश्वर कह रहा है कि तुम डरो मत, Don't doubt me. मुझ पर तुम संदेह I मत। am your God. मैं तुम्हारा I will परमेश्वर, fight all your battles. और मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। And he encouraged those people. और उन लोगों को प्रोत्साहित And he किया, made them to cross the Red Sea. और लाल समुद्र को उनसे पार करवाया। So crossing the Red Sea is an experience of baptism. और लाल समुद्र को पार करना वो बपतिस्मा का एक अनुभूति That's है। what Saint Paul says. 1 Corinthians chapter 10 verse 1 says. और पौलुस कोरिन्थियों 10:1 में कहता है, 10:1 says. 10:1 में कहता So है, crossing the Red Sea means taking the water baptism. और लाल समुद्र को पार करना मतलब बपतिस्मा को ग्रहण करना। Those who are taken water baptism, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, they are all have passed this great trial and tribulation. और उन्होंने सभी लोग ने ये बड़ी महापरीक्षा को पार करके आगे निकले But we हैं। should not be satisfied with that experience. लेकिन उस अनुभव में हम संतुष्ट होकर ना We बैठे, should come one more step up. हम और एक कदम ऊपर उठेंगे। We must receive the baptism of the Holy Spirit. हम उस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को भी पाना चाहिए। So after these people came out of this Red Sea, और लाल समुद्र को पार करने के बाद so God made all the Egyptians to come in midst of the sea. और परमेश्वर ने मिस्री लोगों को सभी को लाल समुद्र के बीच में पहुंचाया। And all of them came in midst of the sea. और जब सारे लोग उस समुद्र के बीच में आ गए, And he mixed the sea. और ये दोनों जो समुद्र था एक हो गया, मिला दिया. मिला दिया उनको, And they all drowned like a stone. और वो सभी लोग पत्थर के समान उस पानी में डूब What do गए। we understand from this passage? और इस पद से हम क्या समझ सकते God हैं? is going to do great wonders for us. परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े अद्भुत काम But करने we वाला है। should not doubt God. हम परमेश्वर पर शक ना Just करेंगे, believe God. केवल प्रभु पर विश्वास So करो। the spirit of doubting is a great stone between us and God to work for us wonders. और ये शक करने वाले आत्मा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करने के लिए उसके बीच में एक This रुकावट morning God wants to deliver us from every kind of spirit of doubt. आज सुबह को परमेश्वर सारी शक की आत्माओं से परमेश्वर छुड़ाना चाहता Some है। people are seated here with a great doubt. कई लोग यहाँ पर बहुत ही संदेह और शक के साथ बैठे हैं। Oh, Jesus wants to increase your faith this morning. यीशु आज सुबह को आपकी विश्वास को बढ़ाना चाहता Praise be है। to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। When we look at another stone, हम दूसरा एक पत्थर को देखते समय Deuteronomy chapter 4 verse 28, और व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 28 वचन, there the word of God says, वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, strange gods are also as stones. व्यवस्था विवरण 4 का Strange gods are also as stones. और पत्थर के देवताओं की भी सेवा करोगे। Strange gods are as stones. அங்கே காணாமலும் கேளாமலும் சாப்பிடாமலும் முகராமலும் இருக்கிற மரமும் கல்லுமான మనుషర్ కైవేలయాగియ దేవగలై సేవిపీர்கள். మీరు మనుషుల చేతి పని అయిన కర్ర రాతి దేవతలను పూజించెదరు. കാണുവാനും കേൾപ്പാനും
ഭക്ഷിപ്പാനും മണക്കുവാനും പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവയായി മരവും കല്ലും കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കൈപ്പണിയായ ദേവന്മാരെ നിങ്ങൾ അവിടെ സേവിക്കും. Strange gods are as stones. और Strange gods, parayi devata. पराय देवता वहां पत्थर के समान है. The word of God says strange gods are as stones. और पराय देवता होंगे कि कुछ पराय देवता की हम पूजन नहीं करते The हैं. word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा है, whatever the things we are giving more importance than God, that is a image in our hearts. जो भी विषय को हम परमेश्वर से ज्यादा मुख्यता देते हैं वो हमारे लिए इस देवता के समान If है. you are loving money more than God, that is your image. और यदि आप पैसा को आपसे उससे ज्यादा प्रेम करते हैं वो आपके लिए एक मूर्ति के समान है. परमेश्वर से पैसा को ज्यादा प्रेम करने से, वो हमारे मूर्ति के समान है. and if you are loving garments, costume more than your God, that is your image. Costume, है ना? आपके The वस्त्रों garments, को आपके वस्त्रों को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं तो वो भी आपको मूर्ति के समान है. If you are loving your positions and post and all these things more than God, that is also an image and doing a idol worship. और यदि आपकी पद या पदवी को आप परमेश्वर से बढ़कर स्थान देते हैं तो वो भी हमारे जीवन में एक मूर्ति के समान We है. need everything, हमें सब कुछ चाहिए, but everything after God only. सब कुछ हमें परमेश्वर के बाद ही होना चाहिए. To survive in this world, we need money. और इस दुनिया में हमको रहने के लिए पैसा की जरूरत है. We need house and car and all these things. हमें घर कार वगैरह सब कुछ चाहिए. But we should not give more importance and we should not love more than God all these things. हम उस सारी वस्तुओं को परमेश्वर से ज्यादा मुख्य स्थान कभी ना देना चाहिए. If we love more than God, यदि परमेश्वर से ज्यादा उन वस्तुओं को प्रेम so करेंगे all these things will become an image and we are doing a idol worship. और ये सारे वस्तु हमारे जीवन में मूर्ति के समान हो जाएगा और हम मूर्ति पूजा करने वाले बन जाते The हैं. word of God says, परमेश्वर का वचन में लिखा है, covetousness is also idol worship. और लोभ करना वो भी एक मूर्ति पूजा है. Colossians 3:5, the word of God says, कुलुस्सियों 3:5 में लिखा है, the covetousness is an idol worship. और लोभ करना वो भी मूर्ति पूजा के तुल्य है. Covetousness means और लोभ करना नहीं तो मोह करना क्या होता है? greediness. नहीं तो उसके बारे में बोलते हैं कि हमेशा लोभ करते रहना. Greed, है ना? God will fulfill our needs, but He never fulfill our greeds. परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है लेकिन हमारे लोभ को कभी भी उससे परमेश्वर पूरा नहीं करता है. लालच, है ना? हमारे Greed. लालच या लोभ को पूरा नहीं करता है. God only fulfill our needs, but not our greeds. परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करता है लेकिन हमारी लालचों को वो पूरा नहीं That's करता. why, dear people of God. और इसलिए परमेश्वर के बच्चे, So this idol worship is as a stone. और इस मूर्ति पूजा एक पत्थर के समान So है. this morning God wants us to remove that stone. परमेश्वर चाहता है कि आज सुबह को उस पत्थर को हम निकाल दें. Then you can get help from our heavenly Father. तब हमको हमारे स्वर्गीय पिता से सहायता मिलेगा. I know one young boy. मुझे एक जवान लड़का मालूम He है. loves the cars. He was crazy of cars. वो गाड़ियों से नहीं तो कार से इतना प्रेम करता उसके पीछे वो पागल बन गया. He changes one after one the models. और एक कार के पीछे दूसरे कार भिन्न भिन्न मॉडल को वो लेता था. Once he was traveling by car, met an accident and died. और एक बार कार में मुसाफरी करने के समय वो एक्सीडेंट हो गया, मर गया. He was loving car more than anybody. वो कारों को सारे वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करता था. Even as for concerning him, the car is the first and God is the second. और उसके बारे में बोले तो कार उसके जीवन में पहला, परमेश्वर उसका जीवन में दूसरा स्थान When था. he was died, जब वो मर गया so their father and mother they made his grave as a car. और पिता और माता ने उसका जो वो बेटी को कार के समान grave. और उस कब्र को कार के समान उस रूप में उस आकार में बनाया. Same ditto like car. और दिखने में वो कार के समान लगेगा. Once I asked them, only then they told all this story. और एक बार जब मैंने पूछा तभी सारी कहानी मुझे बताया गया. Dear people of God, प्रिय परमेश्वर, let us not love anything more than God. हम कुछ भी परमेश्वर से बढ़कर हम प्रेम नहीं करेंगे. You may be thinking I am not worshipping any idols. आप ऐसा सोचते होंगे मैं कोई मूर्ति की पूजन नहीं करता हूं. But now I will give you some of the passages. लेकिन अभी मैं
कुछ वचनों को निकाल के बताऊंगा। If you have all these characters, then you are indirectly worshipping idols. यदि ये सारे स्वभाव आपके जीवन में है तो आप परोक्ष रीति से आप मूर्ति पूजा करते हो। And by listening, by hearing this word of God, just get rid out of all these things. और उन वचनों को सुनने के बाद सारे विषयों से आप बचकर उससे निकलो। Judges chapter 5 verse 8 says, न्यायियों 5वां अध्याय 8वां वचन, if you have always wars and fightings within you and in your family and in the church of God, then you are worshipping an idol. यदि हमेशा हमारे परिवार में हमारे कलीसिया में युद्ध का जैसे माहौल झगड़ा है तो हम ये मूर्ति पूजा करते हैं। Judges chapter 5 verse 8 says, यह न्यायियों 5:8, always if you having wars within you यदि हमेशा हमारे अंदर युद्ध के समान माहौल है तो, and if you have wars within your family, यदि परिवार के अंदर युद्ध का माहौल है तो, no peace between wife and husband, पति और पत्नी के बीच में कोई शांति ना हो, no peace between parents and children, और माँ बाप और बच्चे के बीच में कोई भी शांति ना हो तो, always fighting and quarreling, हमेशा झगड़ा करते हैं, हमेशा लड़ते हैं तो, that means और इसका अर्थ यह है you have an idol within you. आपके अंदर एक मूर्ति समा हुआ You are है, worshipping an idol. आप एक मूर्ति की पूजा करते हैं। Oh, the people, those who are loving God, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं they shall have always peace. और उनके जीवन में हमेशा शांति बना They रहता है, never have any war within themselves. और उनके बीच में उनके अंदर कोई भी युद्ध नहीं होता Dear है। people of God, परमेश्वर के प्रिय let बच्चों, us yield the fruit of the Spirit when we gather together like this. और आत्मा का फल हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए जब हम ऐसा इकट्ठा होते I हैं। told you on the Wednesday also मैंने आपको बुधवार को भी बोला about the 4 types of disciples. और 4 प्रकार के चेलों के बारे में बोला, The disciples of Moses मूसा के चेले and their characters, और उनके स्वभाव, the disciples of Pharisees and their characters, और फरीसियों का चेले और उनके स्वभाव, and the disciples of the John the Baptist and their characters, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनके चेले और उनका स्वभाव, and the Jesus Christ disciples and his और characters. यीशु मसीह के चेले और उनका स्वभाव के बारे में बताया। What Jesus says, यीशु क्या बोलता है? if you yield much fruit, then you are my disciples. यदि तुम अधिक फल लाओगे तो तुम मेरे चेले What कहलाओगे। are those fruits? और वो फल क्या क्या They है? are the fruit of the Spirit. वो आत्मा के फल है। When we gather together like this, हम जैसे आज इकट्ठा we इकट्ठा must होके, love one another. हम एक दूसरे से प्रेम We करना, must have peace with one another. एक दूसरे के साथ शांति होना We चाहिए। must say the words of faith with our mouth. हमारे मुंह से विश्वास का शब्द Don't निकलना चाहिए। discourage anybody. किसी को निरुत्साह मत करना, Don't hate anybody. किसी को नफरत मत If you are करना। doing so, यदि आप ऐसा you are कर- not the disciple of Jesus Christ. यदि ऐसा करते हो तो यीशु You मसीह are का the चेला। disciple of Moses or Pharisees or the John the Baptist. आप मूसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले फरीसियों का चेला है। I told you that Wednesday, अब मैंने बुधवार को बोला earlier that day, here, the great battle was going on. और बड़ा युद्ध चल रहा था Downstairs. और नीचे, No, that should not happen. और ऐसा युद्ध नहीं होना We are coming here to worship the Lord. चाहिए। हम यहाँ परमेश्वर की आराधना करने के लिए When आते we maintain the peace, हैं। जब हम शांति को बनाए रखते then हैं, God dwells there. वहाँ परमेश्वर निवास करता If you है। always fighting and quarreling with one another, यदि हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते झगड़ते हैं तो you have an idol within you. आपके अंदर तब एक मूर्ति बैठा हुआ You है। have a idol in your family. आपके परिवार के अंदर एक मूर्ति बैठा हुआ That's है why there is no peace. और इसलिए कोई शांति नहीं। So this stone of idol should remove, only then God will work for you. और इस जो पत्थर जैसा मूर्ति आपके जीवन में से निकलेगा तभी परमेश्वर काम कर पाएगा। Deuteronomy chapter 8 verse 10 says, और व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे, because of the strange gods, और इस पराई देवता के कारण there was a great destruction. वहां बड़ी विनाश हुआ। There is a great destruction in your business, आपके धंधा में, आपके काम में in your बहुत, studies, आपकी पढ़ाई में नष्ट हो रहा in है, your work, हमारे काम में नष्ट हो रहा है। whatever you does, जो कुछ करते हैं everything gets destruct.
और सब में नष्ट हो रहा है, because there is an idol within you. क्योंकि आपके अंदर एक मूर्ति पड़ा That है is a stone. और वो पत्थर है। God is telling you, remove that stone now. परमेश्वर कहता है अभी ही उस पत्थर को निकालो, Only then I will work for you. तभी मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। Only then you can get help from God. तब परमेश्वर की ओर से He is the सहायता, Father of help. और वो सहायता करने वाला पिता है। Deuteronomy 11:28 says, और व्यवस्थापन 11 का 28 में लिखा है, because of these strange gods, और इस पराई देवता के कारण eventually they get a curse. और उसके वजह से उनके जीवन में श्राप होता है। Let us eradicate all these spirits from our lives. हमारे जीवन से इन सारी आत्माओं को हम निकाल देंगे। God wants to deliver us. परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है। God wants to deliver us from all these spirits. परमेश्वर इन सारी आत्माओं से हमें छुड़ाना चाहता How है। can we get deliverance from all these idols from our lives? हमारे जीवन के ये सारे मूर्तियों से हम कैसे बच पाएंगे? Psalms 91:10 says, और भजन संहिता 91 का 10 में लिखा है, 91 last 14th verse, 91 का 14 वचन, the word of God says, if you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे then I will deliver you. तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। When we love God, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, He will deliver us from every kind of bondage. वो हमें सारे बंधन से छुटकारा देगा। Praise be to God. परमेश्वर का That's धन्यवाद। what dear people of God. इसलिए परमेश्वर के Let बच्चे, us get deliverance from all these idols from our lives. हमारे जीवन की सारी मूर्तियों से हम छुटकारा पाएंगे। Let us not give a room for an idol. हम मूर्ति के लिए कोई स्थान नहीं Let देंगे। us have peace with everybody. सारे लोगों से शांति बनाए Let रखें। us love everybody equally. हम सभी को एक समान प्रेम करेंगे। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। When we coming back for another stone, और दूसरे एक पत्थर के बारे में सोचेंगे। Genesis chapter 29 और उत्पत्ति 29वां अध्याय and the 10th verse says, और उसका 10वां वचन में लिखा है, there also we see a great stone was upon the well. और वहां पर भी एक बड़ा पत्थर उस कुएं के पास था। When Jacob came to Padanaram, और जब याकूब पदन अराम में आए, and there Rachel was feeding the flock, और राहेल उस वहां की भेड़ बकरियों को वो पानी दे रही थी, that time there was an incident we see there. और वहां पर एक विषय हुआ जो हम देख रहे हैं। There was a tradition they kept, और वहां पर एक परंपराई था जो हम देखते हैं, and there was a big well was there, बड़ा एक कुआं वहां दिखाई दे रहा and है, upon that well there was a great stone. और उस कुएं के मुंह पर बड़ा एक पत्थर था। When all the shepherds came over there, सारे गडरिये वहां आने के समय, and all will help to push out that stone, and they feed the flock with the water. और सारे लोग उस पत्थर को हटाने में सहायता करने के बाद वहां की भेड़ बकरियों को पानी देते थे। A single person cannot remove that stone. अकेला एक व्यक्ति उस पत्थर को हटाने के लिए काबिल नहीं है। And everybody should gather. All the shepherds from the jungle, they will come after their feeding the flock, and they will together push out that stone and draw the water and feed the flock. और सारे चरवाहे लोग उसको भेड़ बकरी को खाना खिलाने के बाद उस कुएं के पास आकर मिलकर उस पत्थर को हटाते थे, And they will give the water to the flock. और उसके बाद अपने भेड़ बकरियों को वो पानी पिलाते थे। Until that time, और तब उस समय तक there might be so much of flock. वहां बहुत सारे भेड़ बकरियां होंगे, They're all crying and screaming वे सभी भेड़ बकरियां चिल्लाते हुए, for thirst, for water. क्योंकि तरस के मारे, पानी की तरस के मारे में चिल्लाते हैं। Maybe 3-4 shepherds would have come there, और 3-4 चरवाहे वहां आकर, but they cannot remove the stone. लेकिन उस पत्थर को उनसे हट नहीं They पाएगा। say, let everybody come. वो कहते कि सारे चरवाहा आ जाए, Only then they will push out the stone, और तभी उस पत्थर को हटाते थे, and they will give the water to the flock. और उसके बाद सारे भेड़ बकरियों को वो पानी पिलाते थे। But what happened we see there, और यहाँ क्या होता हम देखेंगे, Jacob came there, याकूब वहां आए, and he was watching all the flock and all the ox and all the buffaloes, all the sheep, goat, all are crying, भैंस बकरी गाय बैल सबको उसको वो देख रहा था। all are shouting सारे लोग चिल्ला रहे, for water. पानी के लिए They're चिल्ला रहे। all in thirst. सभी लोग तरस का। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के in बच्चे, these days also, your thirst is not quenched.
और इन दिनों में भी आपका तरस बुझता नहीं है। Why? क्यों? Because the stone is there. क्योंकि वो पत्थर वहां है। Remove that stone. उस पत्थर को हटाओ, You can get lot of water, तुम्हें बहुत सारे पानी मिलेगा and your thirst will be quenched. और तुम्हारा तरस मिट जाएगा। Now, what did Jacob do? अब याकूब ने क्या किया? He all alone pushed out that stone. उसने अकेला उस पत्थर को लुढ़काया, Because he is seeing all the flock, they are shouting for water. क्योंकि उसने देखा कि सारे भेड़ बकरियां पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। He asked every one of them. उन सारे लोगों से पूछा, They were telling, वे कह रहे no, थे nobody can touch. ना कोई छू नहीं पाएगा, Because everybody should come. क्योंकि सारे लोग मिलकर आना चाहिए। But if everybody comes, it will take more time. Until that time, all the flock will die. लेकिन सभी लोग आएंगे तो बहुत देरी हो चुका, तब तक तो ये भेड़ बकरियां मर जाएंगे। But what did Jacob do? याकूब ने क्या किया? He went there वो वहां गया, and removed the stone all alone. उसने अकेला उस पत्थर को लुढ़का दिया। Why? क्यों? He saw the vision of God. उसने परमेश्वर का दर्शन को देखा। Who can remove that stone? उस पत्थर को कौन हटा पाए? Not everybody can remove that stone. हर एक व्यक्ति उस पत्थर को हटा नहीं पाएगा। Only those who have the heavenly calling, जिसके पास स्वर्गीय बुलाहट है वो कर सकता है। those who have heavenly vision, जिसके पास स्वर्गीय दर्शन है वो कर those सकता who है। are seeing the heavenly dreams. जो स्वर्गीय सपना को देखते हो, Not everybody can remove that stone. सारे लोग उस पत्थर को हटा नहीं पाएंगे। Oh, Jacob would be able to remember God has called him. और याकूब इस बात को याद रखे कि परमेश्वर से बुलाया है। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के our बच्चे, God has called us. हमारा परमेश्वर ने हमें Not बुलाया, a human being called us. कोई मनुष्य ने हमें नहीं बुलाया। Hebrews 3:1 the word of God says, इब्रानियों 3:1 में वचन में लिखा है, God has called us with a heavenly calling. स्वर्गीय बुलाहट के द्वारा परमेश्वर में बुलाया है। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर, our calling is not the worldly calling. हमारा बुलाहट वो संसारी It is नहीं, a heavenly एक calling. स्वर्गीय God बुलाहट है। has called us with a heavenly calling. परमेश्वर ने Let स्वर्गीय us not बुलाहट से forget our calling. हमारी उस बुलाहट So को न this भूलें। morning also Jesus is calling you. आज सुबह यीशु आपको बुला रहा है। Come unto me all you that labor and heavy laden, I will give you rest. और जो परिश्रम करने वाले बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें Oh, विश्राम come to दूंगा। Jesus. यीशु के पास He आओ, will give you rest. वो तुम्हें He विश्राम will देगा, give you peace. वो तुम्हें शांति He will देगा, deliver वो you. तुम्हें He will छुड़ाएगा, heal वो you. तुम्हें चंगाई He is देगा। touching you right now. अभी वो आपको छू रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Jacob removed that stone याकूब ने उस पत्थर को हटाया without anybody's help किसी की सहायता के बिना, because God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। God has given him a vision. परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया। And before King Agrippa, Paul was telling, "Oh, King Agrippa, how can I deny the heavenly calling which God has given to me?" अग्रिप्पा राजा के समय पौलुस ने कहता है कि मैं उस स्वर्गीय बुलाहट के बारे में मैं कैसे निर्लक्ष्य हो सकता हूँ। How can I deny that heavenly calling? उस स्वर्गीय बुलाहट को मैं कैसे How can I इनकार कर, deny the heavenly vision? और उस स्वर्गीय दर्शन को मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। We are not come here by the invitation of the others. हम दूसरों के आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ नहीं आए। We did not come here accidentally. हम अचानक से अकस्मात के रूप God में has called us. परमेश्वर में बुलाया है। Shout 3 hallelujahs whom the God has called you. जिसको जिसको परमेश्वर ने बुलाया 3 बार जोर से हालेलुया बोलिए। Shout hallelujah. हालेलुया, Once again. हालेलुया, Once again. हालेलुया। Hallelujah. No human being has called us. कोई मनुष्य ने हमें नहीं बुलाया है। That's why the one who called us, he Just- will made us to steadfast in the truth. और जिसने हमें बुलाया है वो हमें सच्चाई में खड़ा रहने के लिए स्थिर He will करेगा। help us to stand fast in the truth until the death. और हमारी मृत्यु तक उस सत्य में बना रहने के लिए हमें स्थिर करेगा। What did Jesus promise? यीशु ने क्या वायदा If दिया? you faithful until the death, मृत्यु तक आप विश्वास I will give you crown of life. और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। For every one of us he is promising. सारे लोगों के लिए वायदा देता Let us है। be faithful in our calling. हमारी बुलाहट में हम विश्वासियों के बना रहे। And Philippians chapter 3 verse 14 says, फिलिपियों की पत्री 3:14 में लिखा है, God has called us with a high calling. और एक ऊंची बुलाहट से परमेश्वर में बुलाया है। With a high calling God has called us. परमेश्वर ऊंची बुलाहट से में बुलाया है। When Saint Paul got this calling,
और जब पौलुस को प्रभु बुलाता है, when Paul got this calling, जब पौलुस को उस बुलाहट मिला, then he surrendered, he consecrated, dedicated everything to God. और सब कुछ परमेश्वर के सन्मुख में उसने समर्पित करके सौंप दिया। Oh, if you have that heavenly calling in your life, यदि आपके जीवन में उस स्वर्गीय बुलाहट आपने you पाया है, will also consecrate and dedicate everything to God. आप भी सब कुछ परमेश्वर का सन्मुख में समर्पित करके Because सौंपो। our calling is not a worldly calling. क्योंकि हमारी बुलाहट वो संसारी It बुलाहट is the नहीं है, heavenly calling. ये एक स्वर्गीय बुलाहट है। So that beloved people of God, इसलिए परमेश्वर के प्रिय बच्चे, being the believers, आप विश्वासी हो, being the believers, आप विश्वासी होने के कारण let us be faithful unto God. हम परमेश्वर के सन्मुख में Let us विश्वासी be faithful to our calling. हमारे बुलाहट के प्रति हम विश्वासी को ठहरेंगे। And 1 Timothy was chapter 1 verse 10 when we read, और पहला तीमुथियो पहला अध्याय 10वां वचन में देखते हैं, there we see God has called us with a holy calling. और वहां हम देखते हैं परमेश्वर ने पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया Our है। calling is not an ordinary calling. हमारी बुलाहट जो साधारण बुलाहट नहीं, Dear people of God, प्रिय परमेश्वर, God has called us with a heavenly calling. परमेश्वर ने स्वर्गीय He बुलाहट से has बुलाया, called us a holy calling. एक पवित्र बुलाहट He से has बुलाया, called us a high calling. एक ऊंची बुलाहट से बुलाया है। 3 callings. तीन प्रकार की One is बुलाहट, heavenly calling, एक स्वर्गीय बुलाहट, high calling, एक ऊंची बुलाहट and holy calling. और पवित्र बुलाहट। So this calling Jacob got. और इस बुलाहट याकूब ने अपने जीवन में That's पाया, why he had a zeal. और इसलिए एक जोश उसके अंदर था, With the zeal, he removed the stone. और उस जलन के मारे उसने पत्थर को हटा दिया। Not everybody can remove that stone. ये पत्थर को सारे लोग हटा नहीं सकते हैं। This morning also between you and God, this stone was standing. और आज सुबह भी आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में इस पत्थर पड़ा है, Like Jacob, और याकूब के if we समान। have this calling, यदि इस बुलाहट आपने पाया, remove that stone. उस पत्थर को निकाल दो, And everybody's thirst will be quenched. और सारे लोगों का प्यास बुझ जाएगा। Through you and in you, God wants to do that work. आपके द्वारा और आपके भीतर परमेश्वर ये काम करने के लिए चाहता Through है। you, God wants to quench the thirst of all the people. आपके द्वारा परमेश्वर सारे लोगों का प्यास को बुझाना Let चाहता us है, not be ignorant of our calling. और हमारी इस बुलाहट के बारे में हम लापरवाह न रहे। Hallelujah. हालेलुया। So Jacob removed that stone और याकूब ने उस पत्थर को हटाया, and all the flock got quenched. और सारे भेड़ बकरियों को So उनका तरस मिट गया। spiritually, what are these stone shows? और आत्मिक तौर में इस पत्थर क्या दर्शाता है? Traditions, परंपराएं customs, और रीति रिवाज and all the worldly things. और सारे संसार की बातें। So we should not follow the traditions of this world. हम इस संसार की परंपराएं की पालन ना करेंगे, And these traditions, what these do in our lives, और इस परंपराएं के कारण हमारे जीवन में क्या होता है? they will rejecting the traditions of this world are rejecting the God, the word of God says. और इस दुनिया की परंपराएं परमेश्वर के वचन से हमको दूर करता है, Rejecting उसको God. परमेश्वर को हम इनकार कर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And another stone when we see, और दूसरा एक पत्थर जिसके बारे में हम देखते हैं, book of Joshua, यहोशू का पुस्तक chapter 10, 10वां अध्याय, verses 18 and 22. 10 का 18 और 22। Joshua, book of Joshua, chapter 10, verses 18 and 22. यहोशू का पुस्तक 10वां अध्याय का 18 और 22। There we see a war. वहां हम एक युद्ध को देखते हैं, 5 kings came against Joshua and warring, और यहोशू के विरुद्ध में 5 राजा आए and they're warring. और उससे युद्ध कर रहे हैं। And when the final was, battle was at final, जब उस युद्ध अंतिम क्षण में था, then what happened? उस समय क्या हुआ? All these 5 kings were flee. और ये सारे 5 राजा भाग गए। They flew and they hide themselves in a cave. वो सारे 5 राजा भागकर गुफा में जाकर छिप गए। And when Joshua came to know this secret, और इस गुप्त बात को जब यहोशू को मालूम पड़ा, he commanded his servants to put a great stone before the mouth of the cave. और उस गुफा के उस मुंह में बड़ा पत्थर रखने के लिए यहोशू ने आज्ञा दिया, And they kept it. और पत्थर लगा दिया। And Joshua, when reached over there, जब यहोशू उस जगह में he पहुंचा, brought all these 5 kings. ये 5 राजा को यहोशू लेकर आए, He kept his leg on their necks.
और अपने पांव को उनके गर्दन पर रखकर and he killed them. वो राजाओं को मार So डाला। what does this 5 kings shows? इस 5 राजाओं कौन सी बात को दर्शाता है? The 5 senses. और ये 5 हमारी इंद्रियों के बारे में बताता है। So these 5 senses means fleshly characters. ये 5 इंद्रिय मतलब ये शरीर के हमारे स्वभाव है। The fleshly characters always warring against the spirit. और ये शरीर के स्वभाव हमेशा आत्मा के विरुद्ध में लड़ते रहता है। Galatians chapter 5 verse 17 Saint Paul says, और गलातियों की पत्री 5:17 में पौलुस कहता है the flesh always is warring against the spirit. और शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध में लड़ते रहता When we है। look at the from 19th verse onwards, 19वां वचन से आगे पढ़ने के there समय we see these fleshly characters. वहां इस शरीर के स्वभाव को हम देखते हैं। Almost 19 characters were mentioned there. लगभग 19 स्वभाव वहां लिखा है। So all these are working against the spirit. ये सब कुछ आत्मा के विरुद्ध में लड़ते When रहता we है। come to the verse 22, जब हम 22वां वचन में आते there हैं we see 9 fruits of the spirit. वहां हम आत्मा का फल जो 9 बातें देखते हैं। So these 5 are working against the spirit. और ये सब आत्मा के फल के विरुद्ध में काम कर रहा है। These 5 senses, otherwise the 5 fleshly characters are warring against the spirit. और इस 5 इंद्रियों नहीं तो 5 शरीर के स्वभाव आत्मा के विरुद्ध में काम कर रहा है। So Joshua killed them. और यहोशू ने उसको मार डाला। Who can kill them? कौन मार सकता है? Who can overcome them? उसके ऊपर कौन जय पा सकता है? Only Joshua. केवल यहोशू। Joshua is the man of God. यहोशू परमेश्वर का He is मनुष्य the है faithful servant. और विश्वासियों के दास है। He is the holy man of God. वो परमेश्वर का पवित्र जन So है। those who had all these characters of Joshua, जिनके पास यहोशू के ये सारे स्वभाव है only they can remove that stone और वही उस पत्थर को हटा सकते हैं and bring these 5 kings और ये 5 राजाओं को लेकर and आकर kill them. और उनको मार डाल So सकते in our lives also, हमारे जीवन में भी these 5 senses are dominating us. हमारे जीवन में इस 5 इंद्रियों हम पर कब्जा करता है। The eye gate, the ear gate, the nose gate, and all these gates are dominating our lives. ये कान के द्वार, आंख के द्वार, नाक के द्वार सब इसके ऊपर प्रभुता कर रहा है। Through the Spirit, और इस आत्मा के द्वारा we must break this stone. हम इस पत्थरों को तोड़ देना We चाहिए। must remove this stone इस पत्थरों को हटा देना through the चाहिए help of the Spirit of God. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता के Oh, this morning God is speaking to you. आज सुबह को परमेश्वर आपसे बात कर रहा You are है। not able to get victory over your battles आप आपके युद्ध में जय नहीं पा रहे हो because you are giving more importance to flesh. क्योंकि आप शरीर को ज्यादा मुख्यता देते You are हैं। more giving more importance to the 5 senses. आप 5 इंद्रियों को मुख्यता देते हैं That's why you are not able to get victory over all these और things. इसलिए इन सारे विषयों पर आप जय नहीं पा रहे हैं। This morning Jesus is asking you, आज सुबह को यीशु आपसे कहता है remove that stone उन पत्थरों को हटा दीजिए and I will help you. मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। Praise be to God. परमेश्वर का And धन्यवाद। one more stone, और एक पत्थर 1 Samuel chapter 25 पहला शमूएल 25वां अध्याय and verse 37. और 37वां वचन There we read, वहां हम देखते हैं and Nabal's heart became stone and he died. नाबाल का हृदय पत्थर के समान हो गया, वो मर गया। God only smote Nabal and his heart became stone and died. और नाबाल के जो हृदय पत्थर के समान हो गया और उसके बाद वो मर गया। God alone smote him. परमेश्वर ने उसको ऐसा किया। Mara. मारा। Smote. परमेश्वर उसको मारा, उसके देवन ऐसा हो God गया। only smote Nabal परमेश्वर ने नाबाल को मारा and his heart became stone and died. उसका हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया और मर गया। Why? क्यों? What happened? कारण क्या है? Once Nabal's flock was in jungle जब एक बार नाबाल का भेड़ बकरी जंगल में था and they were attacked by the enemies. और दुश्मनों ने उस पर हमला करने के समय That time David and his servants helped Nabal और दाऊद और उसके साथियों ने नाबाल की सहायता की and David and his servants delivered Nabal's flock from all the
ravenous animals and the enemies. दाऊद और उसके साथियों ने उसके भेड़ बकरियों को दुष्ट जानवरों को हाथों से बचाया। And there are so many ravenous animals were there in those days. और उन दिनों में ऐसे बहुत ही हमला करने वाले जानवरों थे। That time David helped Nabal's flock and shepherds. और उस समय दाऊद ने अपने उनके सारे चरवाहों को, उनके लोगों की सहायता की। After some days, और कुछ दिनों के बाद when David and his servants were in jungle, और दाऊद और उसके दास जब जंगल में थे, so there was no food for them to eat. उनके लिए खाना कुछ भी नहीं था। So what David thought, दाऊद ने ये सोचा, we helped Nabal, that's why he will help us in our this strict situation. हमने नाबाल की सहायता की, इसलिए अब जब हम तकलीफ में है, हमें नाबाल सहायता करेगा। Then he sent, David sent his servants to get some help from Nabal. और दाऊद ने अपने साथियों को, अपने दासों को भेजा नाबाल से सहायता मिलने के When लिए। they came to Nabal, जब वो नाबाल के पास आए, and they are asking food for David and his servants, दाऊद और उसके दासों के लिए जब खाना मांगने के समय, what did the reply of Nabal? नाबाल का उत्तर क्या है? Who is David? कहता है कि दाऊद कौन है? Who is the David, the son of Jesse? और दाऊद यहोशू का पुत्र कौन है? I don't know. Get out from here. और तुम यहाँ से निकल जाओ। Praise be to God. परमेश्वर का So धन्यवाद हो। after that we read in 1 Samuel chapter 25, और उसके बाद पहला शमूएल 25वां अध्याय पढ़ते हैं। God smote Nabal, परमेश्वर ने नाबाल को मारा and his heart became stone and died. और उसका हृदय पत्थर का समान हो गया। What does it show here? यहाँ ये क्या दर्शाता है? Without the heart of gratitude, और एक कृतज्ञता भरी हृदय ना हो तो, not having the heart of gratitude, कृतज्ञता का हृदय ना हो तो, आभारी दिल, we should always have the heart of gratitude. हमेशा कृतज्ञता से भरा हुआ उस हृदय होना And चाहिए। this Nabal doesn't have that spirit. और नाबाल के अंदर इस आत्मा नहीं He है, doesn't have the helping nature. और सहायता करने वाले का स्वभाव उसमें He नहीं, doesn't have the heart of gratitude. कृतज्ञता भरी हृदय उसके अंदर नहीं है। If you lost that heart of gratitude, यदि इस कृतज्ञता का हृदय आपका जीवन से चला गया तो your heart became stone. आपका हृदय पत्थर के समान हो जाता है। God wants to remove that stone now. परमेश्वर उस पत्थर को हटाना चाहता है। If you go to foreign countries, यदि हम विदेश में जाएंगे तो if a paper fallen from your hand यदि एक पेपर आपके हाथ से गिर जाए तो, and anybody lift up and give you, यदि कोई भी उठाकर वापस आपको दे दे तो immediately what they used to say? तुरंत ही वो क्या बोलते हैं? Thank you. धन्यवाद। Immediately they say thank you. तुरंत ही थैंक यू बोलते So हैं। that nature we must have. और उस स्वभाव हमारे अंदर होना So चाहिए। Nabal got so much of benefits from David, नाबाल को बहुत सारे फायदा दाऊद की ओर से मिला, but he doesn't have the heart of gratitude. लेकिन उसके अंदर धन्यवाद कर दे नहीं है। The ungrateful heart is called a stone here. और धन्यवाद नहीं देने वाले इस आदत को पत्थर करके बोला गया है। That ungrateful heart is like a stone you must remove this morning. धन्यवाद नहीं देने वाला स्वभाव एक पत्थर के समान है जिसको आज से Only आपको then निकाला जाए। God can help you. तभी परमेश्वर आपकी सहायता Let करेगा। us humble ourselves in the presence of हम God. परमेश्वर के सन्मुख अपने Let us जीवन all में- kneel down in the presence of God. परमेश्वर के सन्मुख God घुटने is बाजे। moving in our midst to परमेश्वर हमारे मध्य में घूम रहा है deliver us, और वो हमें छुड़ाएगा to help us, और हमारी सहायता करेगा, to have mercy upon us, हम पर दया दिखाएगा, to heal us. हमें चंगाई करेगा। Our compassionate Jesus is walking in our midst. दयालु परमेश्वर हमारे बीच में घूम रहा है। Jesus is asking you, ईश आपसे पूछ रहा है, remove that stone. उस पत्थर को तुम्हारे Remove जीवन से the निकाल दो। stone. पत्थर को जीवन से Everybody निकाल दो। open your mouths सभी लोग अपना and मुंह खोलें। pray loudly. जोर से Oh प्रार्थना करें। Lord, help me to remove this हे stone. प्रभु तो मेरी सहायता कर, मैं ये पत्थर को निकाल Oh, सकूं। only then God can help you. केवल परमेश्वर आपकी मदद कर Only सकता God can do wonders for you. है। केवल परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम कर Remove that stone. उस पत्थर को निकालो। Let God work for you. परमेश्वर Hallelujah. आपके काम करता है। Everybody pray loudly. सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें। प्रकट कर दे परमेश्वर थोड़े परमेश्वर सगल बरिशा बल बरिका बल 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 बाबा दे बल रो दे बंदल Thank you, Lord. Praise सगल and बरिशा बल thank you, बरिका बल praise बल and बल बाबा बाबा दे बाबा दे गारी का दे गल बल संगल बरिशा एक दो announcement है। टुडे गर्ल्स मीटिंग एट 5 o'clock 5 बजे
गर्ल्स मीटिंग है और ये सेकंड वीक है, इसलिए गुरु शुक्र और शनि तीनों दिन सुबह और शाम को यह मीटिंग आप जानते हैं। शनिवार शाम को प्रभु का भोज की सेवकाई होगी। ये सभी लोग प्रार्थना करेंगे और मीटिंग में आपको शामिल होने के लिए आपसे विनती है, प्रार्थना करिएगा। प्रभु ने हमें पहुंचाए हुआ उसके वचनों के लिए आज परमेश्वर निवास चढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आज संध्या समय में प्रभु, सवेरे समय में प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में हर एक अवसर दिया। तेरे नाम को धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब्बा हालेलुया, तेरे दासों के द्वारा हमसे बातचीत किया, तेरे नाम को धन्यवाद पिता परमेश्वर। यहोवा तूने दिया हुआ सलाह के लिए धन्यवाद, तूने दिया हुआ वायदाओं के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें मदद करने वाला परमेश्वर है, हमारा संकट के समय में हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर है। यहोवा तू दयालु है, तू प्रेमी परमेश्वर है, हमें तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, हमारा पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु हालेलुया, इस प्रभु पत्थर के हृदय में प्रभु एक परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना करता राजा। आमीन पिता, हेल्प अस लॉर्ड टू रिमूव द स्टोन हार्ट लॉर्ड। आमीन पिता परमेश्वर, जो पत्थर की स्वभाव है हमें समझाया सिखाया परमेश्वर। आज हमारे जीवन को परखने के लिए, स्वर्ग में दया करने के लिए प्रार्थना करता राजा। जो पत्थर की स्वभाव हमारे अंदर है उसे निकालने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर, ताकि तेरा अद्भुत कामों को, हमें तेरा सामर्थ्य कामों को हमारा जीवन में, परिवार में, मंडल में हम अनुभव कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरे दास के लिए पिता परमेश्वर। तेरे वचनों को प्रभु हम तक पहुंचाने के लिए तू मदद किया प्रभु। आया हुआ तेरा प्रजा के लिए धन्यवाद। केवल सुनने वाला नहीं बल्कि उसे मानने के लिए पिता हमारे एक को तू सहायता करने के लिए प्रार्थना करता राजा। पूरा हफ्ता में संभालने के लिए प्रार्थना करता। आने वाला सारे मुसीबत से, संकट से, बीमारी शक्तियों से प्रभु तेरा प्रजा को तू बचा के रखने के लिए प्रार्थना करता राजा। तेरे अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर, कमिटी को दूर कर दे पिता परमेश्वर। अब आप पास्टर के लिए भी प्रार्थना करता, अब उनके सेवकाई में तो मदद कर, उनके आने जाने में तो मदद करने के लिए प्रार्थना करता पिता। अब सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे एक साथ हमेशा बनते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।